one more time. Yes, I can explain. There are thousands and billions of cells in our body, and they the cells, what we are eating, the cells could You can explain in Hindi. ओके, थैंक यू. तो जो हम लोग खाते पीते हैं उससे वो सेल्स को न्यूट्रिशंस मिलते हैं, जिससे वो हमारी बॉडी को चलने फिरने हेल्दी रहने में एक्टिव रखती है. Okay, so well explained, but very good. Now let's move to our bookish language, but not fully bookish, and we are going to tell it in a bookish way, but we are going to also understand it in a better way. Okay, so cell are, what is the definition of cell in our book? So cell are the structure, functional and biological unit of all living beings. And remember the term living beings. Living beings, all the things which can grow, which can move, which can eat, and etc. are known as living things. So cells are only present in living things. Living things are made of millions and billions of cells. So what about non-living things? We know that living things are made up of cells, but non-living things, they are made up of atoms. You will study in physics and chemistry. In our chapter number Only atoms made things are living things. What? No, atoms are present in non-living things, while cells are present in living things. It is the smallest unit of life in living organism is cell, while the smallest unit in non-living organism is atom. Okay, so I think now it is clear what is cell and what is atom. So we can understand our definition, structure as yes. याद हो गया चैप्टर. मैं क्या याद हो गया, बायोलॉजी पूछो, बायोलॉजी सुनो चुपचाप. नहीं. ठीक है. Cell are the, as our definition says, cell are the structural, functional and biological unit of all living beings. So basically what does our definition means? Structure which helps in giving the structure of our body. They decide during because of cells we our hands, fingers and all our body features are of a same shape. Means every person has different shapes of hands. Means not some hands are slimmer, some are a little thicker, but the structure, the way of them are same. Like they have fingers like ours. Someone has slimmer fingers, someone has thicker fingers. Okay, so cell decides the structure of our body. Functional, they also do functions like what is the function of our heart? Tell me. Her heart? Heart. अच्छा, our heart. Function of our heart to supply blood in our body. Yes, to pump and supply blood, and it also helps in the filtering of blood. But basically, we say that kidney helps in these things. ठीक है. So if we say that heart is an organ and it pumps the blood, so it is doing a function. But it is also related to a cell but how it is relatable, we will study about this few minutes later. Firstly, so is it clear why the definition of the cell is that cell are the structural, functional and biological unit of life? Is it clear? Yes. Okay, so now our next point says that the entire functioning of a living organism begins from a basic unit called cell. मतलब कि जितनी भी फंक्शनिंग होती है लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, वो कहाँ से शुरू होती है? सबसे पहले सेल से शुरू होती है. सेल से शुरू. हाँ, क्योंकि कैसे शुरू होती है? क्योंकि सबसे पहले जो चीज होती है इंसान की बॉडी में होती है सेल. जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनाते हैं. जब टिश्यूज मिलते हैं ऑर्गन्स बनाते हैं. जब ऑर्गन्स मिलते हैं तो पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है. और जब ऑर्गन सिस्टम मिलता है तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं, जैसे कि हम आप सब. ठीक है, तो जितनी भी एंटायर फंक्शन होती है, सबसे बेसिक यूनिट, जो सबसे पहली यूनिट और सबसे छोटी यूनिट होती है, उसे हम सेल कहते हैं. और थर्ड पॉइंट है सेल कैन रेप्लिकेट इटसेल्फ इंडिपेंडेंटली, हेंस दे आर नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ.
meaning of replicate means that can divide themselves. Have you ever listened the term cell division? No. No. Okay, cell division means is there if there a cell. मैं बताती हूँ. मैंने कहीं पे बनाया है, एक बार चिट्ठी को समझना. Means cells have different shapes, but you can see this. This is one of the cell. Imagine this is a cell. On this midpoint is known as nucleus. Okay. It is called the brain of the cell. Okay. We will study more deeply further in our chapter. So basically, cell division is like this, that we have one cell and have a nucleus in it. But when at the time of cell division, the nucleus will become two, like it, and then the cell will divide into two cells. Okay. And each type of cell will have the cell division from 1 to 2, 2 to 4, 4 to 8, 4 to 6. This types of division will happen. So this is called replicating themselves, and they are known as building blocks of life. Because do you know how we build a block? How an building is made? Building is made up of joining blocks. Like firstly ईट जो होता है, एक ईट दूसरा ईट तीसरा ईट, ऐसा कर करके हम जो बनाते हैं पूरा बिल्डिंग बनती है. इसलिए हम इसे बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? क्योंकि एक सेल फिर दो सेल फिर चार सेल ऐसे करके होते रहते हैं. ठीक है. और जो मैंने बोला था कि हार्ट वाला जो है उसमें कैसे सेल काम करता है, तो वो इसलिए काम करता है क्योंकि जो एक सेल मिलता है, बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू बनता है. जब टिश्यू मिलते हैं तो ऑर्गन बनता है. जैसे कि हमारा हार्ट, जो हार्ट है मतलब कि वो सेल से जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं. और जब ऑर्गन हो जाते हैं बहुत सारे तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. जैसे कि अलग अलग टाइप के ऑर्गन सिस्टम होते हैं हमारे. जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड इन आउट होती है, ऑक्सीजन आती है अंदर, ये सब रेस्पिरेटरी सिस्टम. डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें खाना पचता है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम. ऐसे ही अलग अलग टाइप के सिस्टम्स होते हैं. तो जब बहुत सारे ऑर्गन मिलते हैं तो ऑर्गन सिस्टम बनता है. और ऑर्गन सिस्टम जब पूरे ऑर्गन सिस्टम बन जाते हैं तो ऑर्गेनिज्म बनते हैं. यानी हम, तुम, जितने जानवर, पक्षी, ये सब इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम से बने होते हैं ना. सेल तो हम ना कहीं हम किससे बने? सेल से बने हैं. अब हम जानेंगे डिस्कवरी ऑफ अ सेल. सेल सबसे पहले डिस्कवर किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में. लेकिन उन्होंने डेड सेल डिस्कवर किए थे 1665 में, वो भी खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप से. सेल्फ डिजाइन माइक्रोस्कोप से उन्हें 1665 में डेड सेल्स डिस्कवर किए थे. ठीक है. He observed the cell in a cork slice of a oak tree. cork slice होता है जिसमें हम oak tree से आता है वो, उसी में उन्होंने जब वो माइक्रोस्कोप के नीचे रखा था तो उसमें सेल दिखे थे. और जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि जो सेल है वो थोड़ा हनी कॉम्ब का स्ट्रक्चर टाइप है, जैसे मधुमक्खी का छत्ता होता है वैसे है. ठीक है. तो उनने जो देखा उसमें छोटे छोटे जैसे हनी कॉम्ब में कमरे टाइप के होते हैं एक. तो उनने इसको सेल नाम क्यों दिया? क्योंकि जो सेल का लैटिन वर्ड होता है उसका मतलब होता है लिटिल रूम्स, छोटे छोटे रूम्स. तो इसीलिए जो उसको लैटिन में हम मतलब सेल को लैटिन में हम लिटिल रूम्स कहते हैं, इसलिए हमने सेल उसका नाम दे दिया. इसका मतलब होता है छोटे छोटे कमरे. ठीक है. अब हम आगे बोलते हैं. पहले तो डेड सेल उन्होंने किए रॉबर्ट हुक ने 1665 में. फिर आए एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक 1674 में. उनने किए फ्री लिविंग सेल जो कि उनने पॉन्ड वाटर से लिए. उसके बाद आते हैं फिर से मतलब रॉबर्ट ब्राउन आते हैं इस बार, वो भी 1831 में. हाँ, रॉबर्ट ब्राउन आते हैं 1831 में, और उसने सेल के अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट हुआ था उसके बारे में डिस्कवर किया था. उसके बाद आते हैं पुरकिन जी इन 1839. उन्हें प्रोटोप्लाज्म किया था. प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? एक सेल होता है ना, उसके अंदर न्यूक्लियस होता है. ठीक है. सेल के अंदर सिर्फ न्यूक्लियस नहीं होता, बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं. जैसे हमारे अंदर ऑर्गन्स होते हैं वैसे उसके अंदर अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस भी एक ऑर्गन है. माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी अपैरेटस और बहुत सारे उनके अंदर ऑर्गेनल्स होते. तो सेल मेम्ब्रेन मतलब सेल को कवर करने वाली
एक जो आउटर कवरिंग होती है, सबसे लास्ट आउटर कवरिंग जो होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ अ सेल इज नोन एज सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितनी भी चीजें होती हैं उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, उन्हें हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। मतलब सब चीजें मिलती है, जितनी भी चीजें सेल मेम्ब्रेन के अंदर होती हैं उसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, तो पुरकिन जी ने ये डिस्कवर किया था। उसके बाद दो साइंटिस्ट आते हैं, स्लेडन और स्वान, 1838 और 1839 में। उनने सेल थ्योरी करी थी। ये जो डेफिनेशन होती है, सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन बेसिकली ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल। ठीक है, हमने ये सेल थ्योरी की। उसके बाद आखिरी में रुडोल्फ विर्चो आते हैं 1855 में, जिनने फर्दर एक्सप्लेन करी थी सेल थ्योरी। ये क्या कि सेल कैन रेप्लिकेट देमसेल्फ थ्रू द मेथड ऑफ सेल डिवीजन। ठीक है, तो ये पूरा हो गया कि सेल का कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ तक खत्म हुआ। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, सेल शेप है। तो सेल एक शेप के नहीं होते, अलग अलग शेप के होते हैं। हर जितने भी जो शेप होते हैं सेल के, वो उनके फंक्शन में डिपेंड्स होते हैं। अलग अलग टाइप के फंक्शन होते हैं हर सेल के, इसलिए उनके शेप भी अलग अलग होते हैं। लेकिन ये बात बहुत इंटरेस्टिंग कि अलग अलग फंक्शन जरूर होते हैं, लेकिन जो उनके कुछ कुछ ऑर्गन्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब उनके अंदर के जो ऑर्गन्स होते हैं वो हर सेल में सेम होते हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कौन कौन तरीके से शेप होती है। ये देखो ट्राई किया। ठीक है।